নিউজ বাংলার সকল দর্শকবৃন্দকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে এই ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কিন্তু আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম গেরুয়া রঙে রেঙে গেছে সারা ভারত থেকে। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যারা মানে হিন্দু সনাতনী রয়েছে, সাধু সন্ত রয়েছে, তারা কিন্তু এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে। যদি আমি একটু ক্যামেরাটা ঘোরাতে বলি, আমরা এই মুহূর্তে স্টেজে রয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে কিন্তু জনজোয়ার থই থই করছে হিন্দু সনাতনীদের ভিড়ে। আজকে কিন্তু এখানে আপনারা জানেন যে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ, সেই গীতা পাঠের কিন্তু এখানে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন 3টি মঞ্চ করা হয়েছে এবং এখানে যারা সাধু সন্ত রয়েছে, সাধু সনাতনী রয়েছে, তারা কিন্তু এখানে রয়েছেন এবং এখানে কিন্তু গীতা পাঠের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সবাইকে মানে এখানে যারা আছেন সবার হাতে দেখতে পারবেন আপনারা গীতা, এবং এই গীতার ভাবধারায় যাতে সবার মধ্যে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই জন্য কিন্তু আজকে এই মঞ্চ থেকে সেই বার্তা, একই সঙ্গে হিন্দু ঐক্যের সেই বার্তা কিন্তু এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ, সাধারণ যারা সনাতনী, একই সঙ্গে যারা সাধু সন্ত রয়েছেন, তারা কিন্তু এসে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এখানে ইতিমধ্যেই। গীতা পাঠ ঘরে ঘরে পূজ্য নিত্য যোগানন্দজি মহারাজ এতক্ষণ বেলুর শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেন এবং তার প্রবচন রাখলেন। এরপরে আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজ্য ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করলেন। এই ভগবদ্গীতাটি সেই জন্য আমরা এখানে আজকে খুবই একটা পবিত্র দিন, এই দিনে আমরা সকলে সমবেত হয়ে আমরা বলবো উনি একটু প্রবচন করার জন্য। মহারাজজি বসেই বলুন, মহারাজজি বসে বলুন। सनातन धर्म में जो सबसे ज़रूरी काम था वो था समन्वय का, और सनातन धर्म में एक बड़ी समस्या सदा से ये रही है कि हम वैष्णव, शैव आदि विभिन्न मत संप्रदाय में बटे हुए हैं, जबकि ये सारे मत संप्रदाय हमें आपस में जोड़ने के लिए थे, उस परम सत्य को जानने के लिए एक विधा के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। परंतु कालांतर में हमारे आपसी विवाद का कारण हमने अपनी अविद्या के कारण इन्हें ही बनाया। वर्तमान समय में ये एक प्रयास है उस कृष्णवाणी के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को आपस में संयोजित करने का, और ये बहुत ज़रूरी था कि ये कार्य बंगाल की भूमि से होता, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की भूमि से होता, और ये सौभाग्य इसे प्राप्त होना ही था, क्योंकि कोई भी देश, काल, समाज सदा पतित नहीं रहता। एक शब्द है पुनर्जागरण। मेरे विचार से ये पिछले 2-3 वर्षों से संतों ने, पूरे भारतवर्ष के संतों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझा, और जैसे 1757 में संतों ने आज़ादी की क्रांति में भाग लिया था, ठीक उसी प्रकार से आज वर्तमान काल में पूरे भारत के संतों ने आपस में समागम करके इस पुण्य भूमि महाराज कपिल मुनि जी की सांख्य दर्शन की भूमि को पुनः अपने बौद्धिक क्षमता के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया है। आइए हम सभी युवा वर्ग या बौद्धिक वर्ग से वरिष्ठ लोग सभी मिलकर कलकत्ता को वापस भारत और विश्व के पटल पर प्रतिष्ठापित करें। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब मेरे जब से हम कोलकाता में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया है, और इतने बड़ी मतलब विशाल संख्या में लोग आए हैं, इतने उत्साहित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बागेश्वर धाम के श्री धनेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, तो वो भी रामदेव जी भी आए हैं, तो कलकत्ता की भूमि वैसे भी धन्य हो गई है। जी धन्यवाद। মানে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, যেখানে চারিদিকে যেদিকে তাকাচ্ছি গেরুয়া গেরুয়া আর গেরুয়া। আমরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম, মানে উল্টি দিন গুনতি যেটাকে বলে, অনেকদিন আগে স্টার্ট হয়ে গেছিলো। আমরা মাঠে 4-5 দিন ধরে যেভাবে ব্যবস্থাপনা চলেছে, আর সারা মাঠটা দেখছেন গেরুয়াময় হয়ে আছে। কালকে আমাদের যারা ভাইরা বোনেরা আছে তারা ধ্বজ লাগিয়েছেন,
তারপর সাধু মহারাজদের কাল থেকেই সমাগম স্টার্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধু মহারাজরা এসেছেন, নাগা সাধু এসেছেন, প্রায় 5 থেকে 700 নাগা সাধু এসেছেন। তাছাড়াও বাগেশ্বর বাবা, মাইথিলি ঠাকুর, যারা যারা রীতাম্বারা সাধ্বী রীতাম্বারাজি তারাও এসেছেন, এবং মানুষের যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা, এইটা দেখেই মন শান্তি আজকে সকাল থেকে। কি বলবেন এই যে হিন্দুদের ঐক্য, যেটা অনেক সময় বলা হয় যে হিন্দুরা ঐক্য না, ঐক্যবদ্ধ না অন্যান্য ধর্মের তুলনায়, তো সেখানে আজকে দাঁড়িয়ে সেই মানুষের বার্তাটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কি বলবেন? আমরা বলবো যারা বলে হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ব্যাপারটা, ঐক্য ভাব নেই, তারা আজকে আসতে পারতেন। তারা যদি আজকে আসতেন নিশ্চয়ই তাদের মুখটা পুড়তো। ওই জন্যই তারাও আসেনি। তারা দেখছেন, তারা ঘরে বসে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় আজকে দেখছেন, কালকে প্রিন্ট মিডিয়ায় দেখবেন, যারা যে চ্যানেলটা ফলো করেন সেই চ্যানেলটা দেখছেন, সবই তারা ফলো করেছে। কিন্তু বলতে হয়, বলার তো একটা কিছু চাই, সেই জন্যই ওইভাবেই বলছে, এর বাইরে কিছু নয়। কারণ বলার মতো কিছু রাখতে হবে, ভুল ভাল একটা কথা বলে দিলেই হলো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো হিন্দুদের সমাগম কিভাবে হয়েছে, কিভাবে হয়েছে। আমরা এটা ভাবতে পারিনি, এটা আমাদের আবেগ। এই আবেগ আমরা ধরে রাখতে পারছি না। হিন্দু সমাজের জন্য কতটা আশাবাদী, কারণ আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যারা যুব সম্প্রদায় যারা আছে, যুবতী যারা আছে, তারা কিন্তু এখানে একটা বড় সংখ্যা এখানে উপস্থিত রয়েছে। আমি বলছি, কালকে রাতের মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আমি এখানে ছিলাম, তাতে যা দেখেছি আমাদের আশেপাশের জেলা থেকে যেভাবে, যে হারে সাধুর মহারাজরা এসেছেন, সেই হারে কিন্তু সাধারণ মানুষরাও এসেছেন। মাঠের মধ্যে ঠান্ডায় মুড়ি খেয়ে, সামান্য প্রসাদ খেয়ে রাত্রি যাপন করেছেন। এটা কি শুধুমাত্রই আসার জন্য? এটা আবেগ কাজ করছে, হিন্দুদের মধ্যে একটা আবেগ কাজ করছে। क्या बोलना चाहेंगे? आज यहाँ पे हिंदू जागरण का एक मैसेज पूरा विश्व तक जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? एकदम सब लोग आइए, खाली हिंदू नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम भी आए हुए हैं। ठीक है, धर्म सबका अपना अपना होता है, लेकिन एक साथ मिलके अगर किसी का दूसरा, हम लोग मतलब मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो गीता पाठ जो है घर घर में होना चाहिए, हर घर गीता पाठ होना चाहिए, यही मैं बोलना चाहती हूँ। सब हम देख रहे हैं कि बहुत जो यंग एज है, जो हाँ। teenager है, young age है, वो ग्रुप के बहुत युवा भी बहुत यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये? तो ये कितना जरूरी था, आपको क्या लगता है? एकदम ज़रूरी है। अगर बच्चे पैदा होने के बाद ही अगर आप गीता का चर्चा करवाते हो, तो उसमें जो आजकल जो हो रहा है, इतना सारा आचार्य, और देखिए क्या कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं और समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो जो भी हो रहा है, अगर अच्छे शिक्षा मिलने से, बच्चे को अगर अच्छा शिक्षा मिलना है, तो वो बाद में सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए हम देखते हैं जैसे ग्लोबल का जो सिचुएशन है, सब जगह एक तो वर्क है, एक तो अस्थिरता का एक तो बढ़ता है, एक तो भाव है, उसमें ये गीता का प्रचार होना कितना जरूरी है। जैसे कि वर्ल्ड पीस जो हम बोलते हैं, जो बातों का बात है, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता, तो वो कितना जरूरी है? एकदम ज़रूरी है। गीता में क्या है? ज्ञान योग है, कर्म योग है। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपका, और अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो ये गीता से आपको प्राप्त होता है। तो हर मतलब वर्ल्ड में पूरा गीता, मतलब जो हिंदू है या हिंदू नहीं भी है, वो भी गीता पढ़ रहा है, तो पूरा वर्ल्ड वाइज ये गीता पाठ होना चाहिए। जो सामने का जो दिन है, जो फ्यूचर है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि अभी जो हिंदू है उसमें जागरूकता, नया जागरण उसमें आ रहा है, तो आप कितना आशावादी है? कितना? एकदम मैं आशावादी हूँ कि इसके बाद और भी ज़्यादा गीता का चर्चा होगा, तो घर घर गीता चर्चा होना चाहिए बच्चे को। हाँ, सामने एक दिन नहीं, रोज, हर रोज। अब अगर सोते हो तो गीता को रखे, मतलब पास में रखे सोइए। गीता कभी भी ऐसा नहीं है कि आप स्नान करके गीता पढ़ना है, आपको फ्रेश होना है और आप गीता पढ़िए। अब गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो बैग में छोटा गीता रखिए, तो गीता को साथ में रखिए, साथ में रख के चलिए, बस यही है। ये हम लोग को इतना खुश है कि इसका हम बोल नहीं सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के लिए तो एक गर्व का बात है, जो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जिसको बोला जाता है कि अब सेकंड बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर 5 लाख कंठ गीता पाठ हो रहा है। इससे बड़ी और गर्व की बात क्या हो सकती है? कल के दिन में ही एक मुर्शिदाबाद में जो एक ध्वंसकारी, जो भारत को ध्वंस किया, उसके नाम पे एक मस्जिद का शिलान्यास रखा। ये बहुत ही माने
तुच्छ घटना है, जिसको सबसे नीचा स्तर तक बोला जाए। मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन किसी ऐसे ध्वंसकारी के नाम पे बने जो हमारा सनातन संस्कृति का एकदम हिस्सा ना हो। भारत हमारा सनातन धर्म का मूल जगह है, जो पूरे विश्व में यहाँ से सनातन धर्म को प्रचार किया जाता है। आज यहाँ पे हर उम्र में यहाँ पे जो सनातनी यहाँ पे हाजिर हुआ है वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं, तो इसको देख के आप कितना मतलब के आशा रखते हैं? यहाँ पर पूरे नौजवान और बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहीं से पश्चिम बंगाल की रूपरेखा को बदलने के लिए ये जो 5 लाख गीता पाठ हो रहा है, यहीं से इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा।